Good afternoon to all my dear friends. I hope that I am audible in both group and I have already shared the documents and that document is visible on your screen. Today I have decided to discuss the landmark judgment which has been prescribed in your syllabus. Name of the judgment is Krishnamurthy at the rate या Elias Taylor Krishnan versus Public Prosecutor Madras. If you go to the casemate, you will find the three leading cases prescribed in your syllabus. Name of those cases are that Krishnamurthy, Chetan, Visaljit versus Union of India. Earlier, there was one more judgment, but that judgment has been deleted from your syllabus. At present time, there are only three cases. If you see the casemate, that might be that the name of the first case is that Visaljit and like this. But as you know that whenever I discuss any topic, I always prefer to discuss those topic in chronological manner. Why I always prefer the chronological manner? My point is that अगर हम इसको chronological manner में discuss करते हैं तो कल को अगर इसका रेशियो है कृष्णा मूर्ति का रेशियो है, अगर इसी के रेशियो को विशालजीत या चेतन जी स्वामी में वासवानी में कोट करना होगा, साइड करना होगा तो हमारे लिए इजी होगा। तो आपके किस्मेट का जो भी सीक्वेंस हो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कृष्णा मूर्ति व्हाई आई हैव प्रेफर टू डिस्कस फर्स्ट ऑफ दिस केस because this case has been decided in 1967. It means this case has been decided earlier to Chetan J. Vaswani and Visaljit versus Union of India case. हमारे लिए तीनों ही केस इजी है, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम किसी को भी किसी भी सीक्वेंस में डिस्कस कर सकते थे। लेकिन इससे क्या होता था, इससे बहुत सारे फायदे हैं, मैं बाद में आपको डिस्कस करूंगा। तो चलिए फिलहाल हम डिस्कस करते हैं ये कृष्णा मूर्ति एट द रेट जब हम लिखते हैं तो इसको हम इलियास कर सकते हैं या इसको उर्फ कहते हैं। जैसे होता है ना कि छोटा राजन उर्फ गब्बर, तो इस तरह का जो होता है। तो कृष्णा मूर्ति इलियास टेलर कृष्णन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर मद्रास। You can realize that this case is related to the Madras, and at present time Madras is known as the state of Tamil Nadu. Here the matter finally approached to the Supreme Court, and the name of the case before the Supreme Court was that Krishnamurthy alias Taylor Krishnan versus Public Prosecutor Madras. This case was decided by the full bench. Whenever I say the full bench means a bench consisted of three judges. So here the three judges was that Honorable Justice Raghuvar Dayal, Honorable Justice V. Ramaswamy, Honorable Justice Vasisht Bhargava. If you go to the judgments written by the Raghuvar Dayal, many landmark judgments have been written by the Raghuvar Dayal, and especially if you read the judgments prescribed in your syllabus in the unit, that is I think unit 11, which deals with the attempt, that is the 511. If you go to that unit and you will find some landmark judgment prescribed in your syllabus, those some of them has been decided by the Raghuvar Dayal. तो रघुवर दयाल इज अ वेल नोन पर्सनालिटी। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जनरली कृष्ण अय्यर भगवती को ही जानते हैं या कुछ और जजेस को जानते हैं, रघुवर दयाल पर हमारा फोकस नहीं रहता है। लेकिन आप रघुवर दयाल हो या जस्टिस पतंजलि हो, बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट है। इसी एक लैंडमार्क जजमेंट में जजमेंट है रघुवर दयाल। दिस जजमेंट वाज रिटन बाय ऑनरेबल जस्टिस रघुवर दयाल। बेंच वाज कंसिस्टेड ऑफ three judges, but judgment was written by the honorable justice Raghuvar Dayal. Why I always prefer who has written the judgment? इससे ये फायदा होता है, जैसे बाई चांस कोई लाइन का कोटेशन लिखना हो या कोई पॉइंट इस केस में लिखा गया है या इस केस में कोई पॉइंट डिफाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए कि इस केस में डिफाइन किया जाएगा कि मीनिंग ऑफ द ब्रोथल, ब्रोथल का मीनिंग क्या है। तो ब्रोथल की मीनिंग लिखने का दो तरीका है, तीन तरीका है। एक तो सिंपल लिख दीजिए कि ब्रोथल मीन्स दिस 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 दिस। एक दूसरा आइडिया है, यू कैन से दैट द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डिफाइंड द ब्रोथल इन द केस ऑफ कृष्णमूर्ति वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सेकेंड मेथड है। थर्ड मेथड है कि जजेस का नाम लिखते हुए लिखना। यू कैन से दैट द honorable justice in the honorable justice Raghuvar Dayal in the case Krishnamurthy versus public prosecutor define the brothel, and according to him this is the definition of brothel. तो पहला सिचुएशन ये था कि जिसमें आप सिर्फ सिंपल डिफिनीशन लिखते हैं। दूसरा मैनर ये है कि जिसमें केस का नाम और डिफिनीशन लिखते हैं। तीसरा मैनर हमने आपको बताया जिसमें केस का नाम, जज का नाम और डिफिनीशन लिखते हैं। जो तीसरा मेथड है वो बेस्ट मेथड है।
तीसरा मेथड बेस्ट मेथड है। पार्डन, प्लीज पार्डन। अच्छा, हो सकता है इसी तरह से आ गया होगा। So this is the point. The judgment was written by Honorable Justice Raghubar Dayal. Date of the decision. This case was decided on the 26th September 1966. If you go to the citation, citation may be some different. If you go to the AIR, citation may be different. If you go to the citation in the SSC, citation may be different. If you go to the Manupatra, citation will be different. If you go to the criminal law general, citation will be different. So my point is that citation may be different, but date of the judgment will never be different. Suppose that if you want to read the original judgment, आप चेक करना चाहते हैं कि मुरारी सर ने जो केस पढ़ाया है, इशू बताया है, पॉइंट बताया है, सही बताया है, गलत बताए हैं, या खुद चाहते हैं कि मैं भी समथिंग कुछ उसमें ऐड करूं, तो आपको ओरिजिनल जजमेंट कहाँ से मिलेगा? आपको ओरिजिनल जजमेंट केसमेट से नहीं मिलेगा। केसमेट में एडिटेड जजमेंट होते हैं। मान लीजिए 50 पेज का जजमेंट है, तो 10 ही जजमेंट से आपका एक केसमेट तैयार हो जाएगा, लेकिन वैसा तो करना नहीं है। तो उसमें क्या होते हैं, जो रिलेवेंट पैराग्राफ होते हैं उसको कट पेस्ट करके जजमेंट को तैयार कर देते हैं। इसीलिए जितने भी आज तक, चाहे सीआरपीसी, आईपीसी, आज तक जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाया हूँ, कभी भी अपने लाइफ में आपका जो केसमेट है उसको मैं नहीं रीड करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसको कट पेस्ट करके रखा गया है। हो सकता है कि कोई आदमी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको पेस्ट ही नहीं किया और रिलेवेंट पॉइंट है, तो मैं हमेशा ओरिजिनल जजमेंट को ही डाउनलोड करता हूँ और उसके बाद रीड करता हूँ। ओरिजिनल जजमेंट कहाँ से डाउनलोड करता हूँ? सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाता हूँ, वहां पे हाउ टू फाइंड आउट द जजमेंट, तो वहाँ जजमेंट का एक ऑप्शन आएगा। जजमेंट के ऑप्शन में डेट ऑफ जजमेंट पे आप जाइए, डेट ऑफ जजमेंट में फिलअप करिए 26 सितंबर 1966, आपको ओरिजिनल जजमेंट मिलेगा। तो हमेशा मैं वहीं से जजमेंट पढ़ता भी हूँ। इसीलिए मैं जो लिखता हूँ उसमें AIR, SSC ये सब चीजें नहीं लिखी जाती हैं, मैं डेट ऑफ जजमेंट लिखता हूँ। तो 26 सितंबर 1966 को यह केस डिसाइड हुआ था। अब इसमें क्या क्या पॉइंट है जिसको कि हमें डिस्कस करने की जरूरत है? देखिए, इसमें रिलेवेंट इंस्टीट्यूट्स क्या क्या हैं। एक्चुअली क्या है कि हमारा टॉपिक जो है सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट है। आप कहेंगे कि सर आपने इसका नाम सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट क्यों कह रहे हैं? यहाँ पे तो आपका नाम, जो नया नाम चेंज हो गया है उसको लिखना चाहिए। जैसे नया नाम है, क्या है नया नाम है? इमोरल ट्रैफिक ब्रैकेट में प्रिवेंशन एक्ट 1956। तो मैं इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट क्यों नहीं लिख रहा हूँ? मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि इस एक्ट का नाम 1986 में चेंज हुआ था। 1986 से पहले इस केस का नाम, क्या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज, हाँ, 1986 से पहले इस केस का नाम सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट था। तो यह केस कब डिसाइड हुआ है? 1966 में डिसाइड हुआ है। तो हमारे कहने का मतलब है कि 1966 में क्या लॉ था उसको हमें यहाँ डिस्कस करना है। एट प्रेजेंट टाइम में क्या लॉ है उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। At that time, what was the law when the case was decided? At that law we are going to discuss. We are not going to discuss here the present law. इसीलिए अब यहाँ पर हम केस का नाम लिखे हैं, एक्ट का नाम लिखे हैं सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट। अब देख सकते हैं कि मैं कई बार अपने क्लास में प्रेफर भी कर चुका हूँ कि 1986 से पहले वुमेन एंड गर्ल्स को ही कवर कर रहा था, ठीक है। माय पॉइंट इज दैट ये है, वुमेन एंड गर्ल्स को ही कवर कर रहा था। तो फिर कह रहा है कि इसमें कौन कौन पॉइंट इन्वॉल्व है। तो इन्वॉल्व इसमें जो पॉइंट हम देख सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ ब्रोथल इन्वॉल्व है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 25, ये सब इस एक्ट इन्वॉल्व है। 25, 20 लाइक दिस। तो हम कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर केस वी हैव टू डिस्कस सेक्शन 2, 3, 4 एंड 25 ऑफ द सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन वुमेन एंड गर्ल्स एक्ट। जब हम अदर लॉ की बात करते हैं, उसी समय एक लॉ होता है मद्रास सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1930 का। यह एक्ट पास किया गया था, मतलब कि 1930 में पास किया गया था। लेकिन जब इमोरल एक्ट आया, जैसे सीता का एक्ट आया, सीता का मतलब क्या है? सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। जब सीता एक्ट आया तो उसका सेक्शन 25 क्लास 1 क्या किया?
कहा कि जो पहले से एग्जिस्टिंग लॉ है उनको रिपील कर दिया गया, जो उनको रिपील कर दिया गया। आप देखते होंगे कि हर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं मिलेगा जिसमें कि एक सेक्शन रिपील एंड सेविंग का ना हो। हर एक इंस्टीट्यूट में रिपील एंड सेविंग का एक सेक्शन होता ही होता है। अगर अलग अलग नहीं है तो एक ही सेक्शन का एक क्लास रिपील की बात करेगा, एक क्लास सेविंग की बात करेगा। जैसे कि 25 को ही ले लेते हैं। 25 का क्लास 1 कहता है कि सीता एक्ट से आने से पहले जो भी लॉ इमोरल ट्रैफिक को डील कर रहे हैं वह लॉ रिपील हो जाते हैं। लेकिन 25 का क्लास 2 कहता है कि अगर उस लॉ के अंतर्गत कोई कन्विक्शन हो रखा है या कोई ट्रायल चल रहा है या कोई डिसीजन पहले से ऑलरेडी हो चुका है, वह डिसीजन को सेव करता है, मतलब वह डिसीजन कंटिन्यू रहेगा। तो 25 का क्लास 1 रिपील की बात करता है और क्लास 2 की सेविंग की बात करता है। इसका हम क्यों डिस्कस करते हैं, आपको बाद में डिस्कस करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इन दिस पार्टिकुलर एक्ट 2 लॉ वाज इन्वॉल्व। One was that suppression of immoral traffic in women and girls act, and second law was that Madras Suppression of Immoral Traffic Act 1913. Provisions regarding the Sita Act was section 23425. Provisions of the Madras Suppression of Immoral Traffic Act section 5 and section 8 was involved. ये दो पॉइंट आपको रखना होगा। अगर ये पॉइंट अगर आपको याद रहेगा तभी आप इस केस को समझ सकते हैं, अदरवाइज इस केस को समझेंगे नहीं। जब भी आप जजमेंट लिखिए हमेशा आप कहते हैं कि मार्क्स हमें क्यों कम आता है, क्यों क्यों आता है, आप जितना कंफ्यूज करेंगे उतना ही कम मार्क्स आएगा। आपका एक पहला इंट्रोडक्शन की लाइन में ही ऐसे लिखिए कि पता चल जाए कि आपको मालूम है कि नहीं। जैसे इस केस के बारे में लिखना है, एकदम बेसिक लाइन लिखो कि इन दिस पार्टिकुलर केस two laws was involved. One was the Sita Act and other was the this Madras Suppression of Immoral Traffic Act. In this particular act, section 234 and 25 of the Sita Act was involved, which was discussed thoroughly. बस क्लियर हो गया। चलिए अब हम आपको फैक्ट डिस्कस करेंगे। फैक्ट डिस्कस करने के बाद आपको लॉ को भी डिस्कस कर देते हैं। आई होप दैट एवरीवन इज कंफर्टेबल इन हिंदी लैंग्वेज। If anyone is uncomfortable, please let me know. I will try my best. Facts is that here the Krishna Murti, Krishnan, देखो वहाँ पे टी जब तमिलनाडु का एक ट्रेडिशन है कि टी एच जब भी लिखते हैं तो ही पढ़ते हैं। मैं भी वहाँ पे 8 महीना रहा हूँ तमिलनाडु पंडिचेरी में, तो उसका एक अलग ही है। जैसे सरिता लिखना होगा या सीता लिखना होगा, सीता अगर उनका लिखना होगा तो यस आई टी एच करेंगे। वो क्या लिखेंगे, वो सीता लिखना होगा तो यस आई टी एच ए सीता, सीता उनका कहने का मतलब होता है। कृष्णा मूर्ति होगा तो कृष्णा मूर्ति और कृष्णन जैसा केस का नाम भी है। कृष्णा मूर्ति कृष्णन वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर रनिंग द ब्रोथल। अब मेरा नाम तुम अगर हाफ ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। इसका नाम तुम कृष्णा शार्ट में भी रख सकते हो। तो कह रहा है कि कृष्णा नाम का जो आदमी है उसको प्रोसिक्यूट किया जाता है। व्हाई ही वाज प्रोसिक्यूटेड, वेदर फॉर किडनैपिंग, एब्डक्शंस, रेप, सोडोमी, बेस्टिलिटी, नथिंग। ही वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर रनिंग द ब्रोथल। ही वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर रनिंग द ब्रोथल। और उसका सिचुएशन ये है, इस पार्ट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसे सीता एक्ट के अंतर्गत प्रोसिक्यूट किया गया, सीता एक्ट के अंतर्गत प्रोसिक्यूट किया गया। और इससे पहले भी वो मद्रास सप्रेशन एक्ट के अंतर्गत पहले भी एक बार उसका कन्विक्शन हो चुका था। मतलब हम कह सकते हैं कि भारत की आजादी से पहले कृष्णा मूर्ति कृष्णन इस तरह का ब्रोथल का काम, जिस ब्रोथल रन कर रहा था, तो पहले भी उसको अरेस्ट किया गया था, केस चलाया गया था और उसे कन्विक्शन भी हुआ था। फिर सीता एक्ट आया, तो सीता एक्ट आया तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई की गई, तो एक नया फैक्ट आया, फिर से उसको केस किया गया। इसीलिए कहा गया कि कृष्णा मूर्ति कृष्णन वाज प्रोसिक्यूटेड फॉर रनिंग द ब्रोथल अंडर द सीता एक्ट and he had already been convicted under the Madras Suppression of Immoral Traffic Act 1930 also. फैक्ट कहता है इसमें कि एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है, एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जिसको कि एसीपी विजिलेंस है, एसीपी नाम का एक अधिकारी है, उसको इंफॉर्मेशन मिली कि यह पार्टिकुलर एरिया है, उस पार्टिकुलर एरिया में सेक्स रैकेट चल रहा है।
उसको इन्फॉर्मेशन मिली, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, खुफिया विभाग से उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे इस तरह का चल रहा है। आज ही मैं न्यूज पढ़ रहा था तो देखा कि एक यूनिसेक्स था रोहड़ी एरिया में, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, तो वहां से ही 10 लड़कियों को और दो व्यक्तियों को ब्रोथल रन कराने के लिए उनको अरेस्ट करके पुलिस लेकर के गई है। तो हमारे कहने का मतलब है ये बहुत ही नॉर्मल घटना है। तो इस तरह की सिचुएशन में एसीपी को इन्फॉर्मेशन मिला कि एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहां पर एक व्यक्ति है जो कृष्णा मूर्ति है, वो ब्रोथल चला रहा है। अब उसको प्लान बनाया गया। एक एक होता है ना प्लान बनाना, कैसे हम रंगे हाथ पकड़ लें कि हाँ एक काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एक प्लान बनाया गया। प्लान में ये रखा गया कि एसीपी ने प्लान बनाया कि एक शानमुगम नाम का व्यक्ति है, इसको प्लान बनाया गया कि तुम ऐसा हम लोग करते हैं कि 10-10 रुपीज तुम्हें देते हैं। जब भी करप्शन का भी केस, किसी व्यक्ति को, अधिकारी को अरेस्ट करना होता है, तो यही फंडा अपनाया जाता है। होता क्या है कि जैसे सीबीआई हो चाहे कोई भी एसीबी हो, एंटी करप्शन ब्यूरो, वो करते क्या है सर कि पैसे का नोट का बंडल बना करके दे देंगे और कुछ उसके अंतर्गत कुछ मार्क लगा देंगे, ताकि पता चल जाए कि वही पैसा है जो कि अथॉरिटी ने भेजा था और आपने रिसीव किया है। तो एसीपी ने प्लान बनाया, शानमुगम को कहा कि तुम्हें 10-10 रुपया दिया जा रहा है। कितना कितना? 10-10 रुपए का 3 नोट दिया जा रहा है। और तीनों पे एक मार्क बना दिया गया। मान तीनों पर स्टार का मार्क बना दिया गया। स्टार तो नहीं, ये इंटू का है, मतलब सपोज दैट आपको स्टार का मार्क बना दिया गया। तीनों का स्टार का मार्क बनाकर कहा गया कि तुम इसको ले जा करके कृष्णा मूर्ति को देना और कृष्णा मूर्ति से कहना कि हाँ मुझे एक लड़की चाहिए, जो मुझे सेक्स करने के लिए मुझे लड़की चाहिए, अगर तुम सप्लाई करते हो तो बताओ। तो इसने इस प्लानिंग के थ्रू कृष्णा मूर्ति शानमुगम एक अधिकारी है, शानमुगम को 10-10 के नोट दे करके, 10-10 रुपीज का नोट्स दे करके कृष्णा मूर्ति के पास भेजा। कृष्णा मूर्ति से शानमुगम ने विजिट किया। विजिट करने के बाद शानमुगम ने कृष्णा को कहा कि तुम मुझे लड़कियां दिखाओ, मैं तुम्हें मतलब सेक्स करने के लिए लड़की चाहिए मुझे, मैं तुम्हें इस तरह का पैसा दूंगा। तो कृष्णा मूर्ति ने कहा कि देखो भाई 3 पीस है, एक है सरोजा है, एक है अंबिका है, एक है लक्ष्मी है, अब तुम्हें बताओ कौन सी पसंद है। अब इस तरह का ऑफर जब शानमुगम को मिला तो शानमुगम ने अंबिका को चूज किया। शानमुगम ने कहा कि ये वाली लड़की हमें सुंदर है, इसके बाल घुघराले हैं, जो भी अपना प्लानिंग बनाया होगा, कहा होगा, तारीफ तो करना ही पड़ा होगा, कहा कि हाँ अंबिका को मैं चूज करता हूँ। उसने अंबिका को चूज कर लिया। चूज करने के बाद जो 10-10 रुपए का जो नोट था, जो शानमुगम को एसीपी ने दिया था, शानमुगम ने कृष्णा मूर्ति को हैंड ओवर कर दिया। भाई हैंड ओवर करोगे, पैसा दोगे, तभी तो कृष्णा अलाउ करेगा कि हाँ अंबिका को लेकर के जाओ। तो इसमें क्या किया है कि जैसे ही 10-10 रुपए का नोट दिया कृष्णा मूर्ति को, कृष्णा मूर्ति ने कहा ठीक है अंबिका को लेकर के जाओ। तो बगल का एक रूम था, तो बगल के रूम में कृष्ण शानमुगम ने अंबिका को लेकर के एंट्री कर गया। बगल का रूम था, अब यहाँ पे शानमुगम और अंबिका के यहाँ पे एंट्री हो गई। इसी बीच जो एसीपी अधिकारी था, वो सब की ऑलरेडी प्लानिंग थी, डिप्लॉय थे, सब ऑलरेडी थे कि जैसे ही एंट्री होगी वहां पे होगा। यहाँ पे अब ये नहीं मालूम है, प्रोस्टिट्यूशन का एक और कंडीशन बता दूं कि प्रोस्टिट्यूशन के लिए सेक्सुअल इंटरकोर्स जरूरी नहीं है। सेक्सुअल इंटरकोर्स जरूरी नहीं है कि हाँ भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तभी कहा जाएगा कि यहाँ प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था या ब्रोथल रन कर रहा था। नहीं, आपने अपनी बॉडी को हैंड ओवर कर दिया, आपने अपनी बॉडी को सरेंडर कर दिया, दैट इज द सफिशिएंट। अब उस व्यक्ति ने टच किया नहीं टच किया, सेक्सुअल पेनिट्रेशन किया नहीं किया, ईच एंड एवरीथिंग इज इमेटेरियल। सेक्सुअल इंटरकोर्स और टचिंग द बॉडी इज नॉट नेसेसरी, ओनली सबमिशन of the body for the money is sufficient to constitute the prostitution if that was going on for commercial transaction. If that was going on for commercial transaction. तो यहाँ पे शानमुगम तो ऐसे कह रहा है कि मैं सिर्फ घर में घुसा ही था, मतलब इसका बहुत इशू नहीं था। तो एसीपी जो भी अधिकारी थे तुरंत एंट्री मारे और यहीं से शानमुगम को सरता के साथ मतलब पकड़ते हैं कि अंबिका जो है इसके साथ रिलेशन बनाने को तैयार हो रहती है। और यहीं आप पाते हैं कि कृष्णा मूर्ति के पास 10-10 रुपए का नोट जो था, टोटल 30 रुपए था, 30 रुपए के साथ कृष्णा मूर्ति को अरेस्ट कर लिया गया।
अब इस तरह से पूरा का पूरा फैक्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम कह सकते हैं बहुत शार्ट फैक्ट है कि इन दिस पार्टिकुलर केस एसीपी मेक ए प्लान टू अरेस्ट द कृष्णामूर्ति। व्हाई? बिकॉज देयर वाज ऑलरेडी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड बाय द एसीपी दैट कृष्णा वाज रनिंग द brothel. In that circumstances, they made a trap to arrest the Krishnamurti with red-handed. In that circumstances, Shanmugam, who was the officer in the police department, he was sent to Krishnamurti with uh, 310 rupees with certain marks. Shanmugam went and visited the Krishnamurti and he discussed, and Krishnamurti became ready to receive the 30 rupees, and he said the Shanmugam, please take the Ambika and go into the room. After that, Shanmugam entered into the room with the Ambika. Meanwhile, ACP with some other officers entered into the room and they found that yes, Ambika was ready, and at the same time, Krishnamurti was arrested. Now, question was that whether the Krishnamurti should be punished or not. This was the point. At the later on, Krishnamurti FIR was registered against the Krishnamurti, and case was started against the Krishnamurti. This was the brief facts. Charge was framed against the Krishnamurti. Why? Under which particular section? Under section 3. What is the section 3? सेक्शन 3 कहता है, जब हम कल आपको पढ़ा रहे थे तो सेक्शन 3 के दो पार्ट हैं। मैं शुरू से कह रहा था कि सेक्शन 3 के कितने पार्ट हैं? सेक्शन 3 के दो पार्ट हैं। एक मिनट लगेगा, कहीं होगा सेक्शन 3 जहां तक मुझे लग रहा है। सेक्शन 3 के दो पार्ट हैं। सेक्शन 3 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी हाउस को प्रीमाइसेस को किसी हाउस प्रीमाइसेस को अगर ब्रोथल के रूप में कीप करता है, मैनेज करता है, तो उस सर्कमस्टांसेस में उस व्यक्ति का कन्विक्शन होगा। लेकिन साथ साथ में कहता है कि सेक्शन 3 के दो पार्ट है। कहता है कि अगर पहली बार ऑफेंस किया गया है तब कितना पनिशमेंट होगा, और सेकेंड टाइम अगर अगर वही ऑफेंस किया है तब कितना पनिशमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि सेक्शन 3 क्लियरली से दैट इफ एनीवन इज कीपिंग द ब्रोथल ही विल बी पनिश्ड, एंड सेक्शन 3 said that if he has committed the first time offense he will be punished for the minimum punishment. I think minimum punishment is कितना भाई उसका सेक्शन 3 का मिनिमम 1 to 3 year. हाँ 1 to 3 years। यस एक मिनट हम भी पहुंच ही गए होंगे। हाँ, फर्स्ट टाइम इफ यू आर गोइंग टू कमिट द ऑफेंस इन दैट सर्कमस्टांसेस मिनिमम पनिशमेंट 1 year, मैक्सिमम पनिशमेंट 3 years, एंड फाइन इज ओनली अप टू द 2000 रुपीज। एक स्टूडेंट पिछले क्लास में कह रहा था सर 2000 ही क्यों, ये बहुत ही कम पैसा है, ज्यादा फाइन होना चाहिए। ये आपका सजेशन है, और ये सिर्फ आपका ही सजेशन नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड मिनिस्ट्री ऑफ जो चाइल्ड एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसके वेबसाइट पर भी ये सजेशन दिया गया है, और मिनिस्ट्री ने भी रिकमेंड किया है पार्लियामेंट से कि आप इसके 2000 को इंक्रीज करके 2 लाख कर दीजिए, या 2 लाख के लिए रिक्वेस्ट किया गया, रिकमेंडेशन किया गया, लेकिन फिलहाल अभी नहीं हुआ है। तो पॉइंट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कन्विक्शन करेंगे, फर्स्ट टाइम क्राइम करेंगे, तो आपको 1 से 3 साल का पनिशमेंट हो सकता है। लेकिन अगर दूसरी बार अगर आपका कन्विक्शन होता है तो आपको 2 साल से 5 साल का कन्विक्शन हो सकता है। तो पहले तो हमें डिसाइड करना होगा कि वेदर ही वाज रनिंग द ब्रोथल और नॉट, बिकॉज ही वाज प्रोसिक्यूटेड अंडर सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 का पहला क्वेश्चन है, सेक्शन 3 is applicable and talks about the punishment for keeping or managing the brothel. तो पहला कंडीशन है कि what is the meaning of the brothel. Why? Krishnamurti was saying that Millards, whatever he was going on, that place was not coming under the category of brothel. And he was saying that if that place was not coming under the definition of brothel, in that circumstances no question arises regarding the application of section 3. पहला आर्गुमेंट शुरू होता है यहीं से। पहला आर्गुमेंट कृष्णमूर्ति कहता है कि जहां पे शानमुगम अंबिका के साथ सेक्स करने जा रहा था, वह प्लेस ब्रोथल के डिफिनीशन में नहीं आता, वह प्लेस सेक्शन 2A के डिफिनीशन में नहीं आता। अगर 2A के डिफिनीशन में नहीं आता, अगर ब्रोथल के डिफिनीशन में नहीं आता, तो सेक्शन 3 के एप्लीकेशन होने का कंडीशन ही नहीं आता है।
क्योंकि सेक्शन 3 के एप्लीकेशन होने का पहला कंडीशन है कि देयर मस्ट बी ब्रोथल। सेक्शन 3 का दूसरा कंडीशन है कि दैट ब्रोथल मस्ट बी कीप्ड और मैनेज्ड बाय समवन। इन दैट सर्कमस्टांसेस मैनेजर और कीपर विल बी लायबल फॉर द पनिशमेंट। तो उसका कहना था जब ब्रोथल है ही नहीं तो फिर उसका मैनेजर में कैसे हुआ, और जब मैं ब्रोथल नहीं है, मैं मैनेजर नहीं हुआ हूं, तो सेक्शन 3 अप्लीकेबल ही नहीं होगा। सेक्शन 3 का जो पर्सन की बात थी, सेक्शन 3 कहता था, पहला पार्ट था कि चाहे आप कीपर हो चाहे मैनेजर हो। दूसरा पार्ट उसका था कि या तो आप ओनर हो या लैंडलॉर्ड हो, इस तरह का सरकमस्टांसेस था। तीसरा पार्ट था कि चाहे आप लेसी हो या इस तरह का सरकमस्टांसेस, या आप रेंट पे लिए हो। तो कहने का उसका मतलब था कि यह ब्रोथल नहीं था, और मैं उसका जब ब्रोथल ही नहीं है तो मैं उसका मैनेजर भी नहीं हूं। इन दैट्स वाई सेक्शन 3 शुड नॉट बी अप्लाइड। तो पहला क्वेश्चन ये था कि वेदर दैट प्लेस शुड कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ब्रोथल और नॉट। पहला क्वेश्चन इसका यही है कि that place should not come under the question is that whether this place should come under the definition of brothel or not। पहला क्वेश्चन समझ में आया कि किसी को डाउट हो रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ। यस तो सर। यही हमें डिस्कस करना होगा, क्योंकि देखो ब्रोथल अगर नहीं है तो सेक्शन 3 का पहला कंडीशन नहीं होगा। तो पहला हमें इसी पे आर्गुमेंट करना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ब्रोथल। पहला कंडीशन अगर फुलफिल होगा तो दूसरा कंडीशन हमें फुलफिल करना पड़ेगा कि वेदर ही वाज मैनेजर और नॉट। अगर दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया तब पनिशमेंट की बात आएगी। कन्विक्शन और पनिशमेंट में हमेशा डिफरेंस होता है। जब हम सीआरपीसी का जब हम लोग पढ़ाते थे सेक्शन 235 का क्लास 1 और क्लास 2, तो हमेशा डिस्कस करते थे कन्विक्शन और पनिशमेंट में डिफरेंट होता है। कन्विक्शन का ये हुआ कि जैसे कि मिस्टर लालू यादव का केस था, उनका कन्विक्शन हुआ, कन्विक्शन के 7 दिन बाद डिसाइड हुआ कि पनिशमेंट कितना मिलेगा। हर क्रिमिनल के साथ यही होता है। जैसे मान लीजिए कि इसमें मान लीजिए काजल है, काजल इज प्रोसिक्यूटेड फॉर कमिटिंग द डकैती। तो आज तो पहले डिसाइड होगा कि वेदर काजल हैज कमिटेड डकैती और नॉट। अगर डिसाइड हो गया तब क्वेश्चन राइज होगा कि हाउ मच पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड। तब उस पे आर्गुमेंट होगा कि काजल को कितना पनिशमेंट मिलना चाहिए, 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कितना पनिशमेंट मिलना चाहिए। वो दूसरा पार्ट है। तो सेक्शन 3 के दो पार्ट हैं। पहले आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ही वाज whether he has committed punishment and whether he has committed offense under section 3 or not। अगर एक बार प्रूफ हो गया तब सेकेंड क्वेश्चन राइज होगा कि हाउ मच पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड। हाउ मच पनिशमेंट शुड बी अवॉर्डेड का दो पार्ट है। अगर पहली बार क्राइम किया है तो जैसा स्टूडेंट बताया कि मिनिमम 1 साल और मैक्सिमम 3 साल। दोबारा दूसरी बार या हैबिचुअल ऑफेंडर है, कई बार ऑफेंस कर रहा है, तो उसका मिनिमम 2 साल और मैक्सिमम 5 साल। तो पहला इशू हमारा रिलेटेड है कि वेदर वेदर ही हैज कमिटेड एन ऑफेंस और नॉट, और उसके लिए हमें डिफाइन करना होगा कि वेदर दैट प्लेस वाज ब्रोथल और नॉट। तो यही एक मेन पॉइंट है। इस सिलेबस में आपके लिखा हुआ है। पहले तो प्रेसिडेंसी और हाई कोर्ट का जजमेंट बता दूं। प्रेसिडेंसी कोर्ट ने कहा कि देखो, तुम लोग को चार्ज सेक्शन 3 के अंतर्गत नहीं फ्रेम करना चाहिए था, अरे रिपोर्ट एक्चुअली में सेक्शन 4 बनता है। प्रेसिडेंसी कोर्ट ने सेक्शन 3 में कन्विक्शन नहीं किया उसका, कृष्णा का कन्विक्शन किस में किया, सेक्शन 4 में किया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, सेक्शन हाई प्रेसिडेंसी कोर्ट गलत था, वास्तव में इसका कन्विक्शन 3 में ही होना चाहिए, और 3 में उसका कन्विक्शन किया भी गया। जब 3 में कन्विक्शन हो गया तो कृष्णा ने चैलेंज कर दिया हाई कोर्ट के जजमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिलार्ड्स, हाई कोर्ट को डिफिनीशन ब्रोथल का डिफिनीशन नहीं मालूम है। हाई कोर्ट को मालूम ही नहीं है कि कब कौन प्लेस ब्रोथल में आएगा और कब कौन सा प्लेस ब्रोथल में नहीं आएगा। तो इसलिए हाई कोर्ट के जजमेंट को सेट असाइड कर दीजिए और मुझे एक्विटल डिक्लेयर कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आपको बता दूं, फिर आर्गुमेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो कृष्णा मूर्ति, तुम्हारा कहना कि हाई कोर्ट का जजमेंट गलत है और सेक्शन 3 का जो कन्विक्शन है उसको सेट असाइड कर दिया जाए, ये नहीं है। हाई कोर्ट का जजमेंट सही है
और तुम्हारा जो आर्गुमेंट है, कहते हो कि ये प्लेस ब्रोथल नहीं है, यह प्लेस ब्रोथल है। अब दोनों साइड से आर्गुमेंट होगा, कृष्णा मूर्ति क्यों कह रहा है कि यह प्लेस ब्रोथल नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट कैसे कह दे रहा है कि यह प्लेस ब्रोथल है। देखो, हम तुमसे अगर पूछें तो बड़ा इजीली कह दोगे कि ये ब्रोथल है, तुम्हें कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि मिलार्ड्स, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन भी मिला हुआ था। जब आदमी जाता है तो पैसा देने के लिए तैयार होता है, 3 लड़कियां दिखाई जाती हैं, इस सरोजा, अंबिका, लक्ष्मी, इसमें से तुम चुन लो किसको चूज करना चाहते हो। और भाई साहब चूज भी कर लेते हैं, अंबिका चूज करके सिर्फ खड़े नहीं रहते हैं, अगली कार्रवाई के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और कृष्णा बताता है कि बगल वाले रूम में तुम जाओ और तुम अपने हिसाब से जो करना है अपना कर लो। अब कितना क्या किया क्या नहीं किया, दैट इज अनदर पॉइंट। ये साफ साफ दिख रहा है कि यह तो ब्रोथल है। तभी तो कृष्णा ने सीधा कह दिया ना कि हमें पैसा दे दिए, अंबिका को बोल दीजिए बगल वाले रूम में तुम जाओगे, अब दूसरा ग्राहक आएगा तो सरोजा लक्ष्मी को चूज करेगा। ये साफ साफ ब्रोथल है। लेकिन कृष्णा क्यों कह रहा है कि ब्रोथल नहीं है, कुछ तो कह रहा होगा, उसका भी रीजन होगा ना। कृष्णा का आर्गुमेंट है, कहता है कि मिलार्ड्स, एक वर्ड है ब्रोथल के डिफिनेशन में जो यह प्लेस को कहता है कि ब्रोथल नहीं है। कौन सा वर्ड है? कृष्णा कहता है कि टू ए के डिफिनेशन में एक वर्ड आता है, फॉर द पर्पज ऑफ। आप जब डिफिनेशन में जाएंगे, जब टू ए का जब डिफिनेशन होगा तो एक वर्ड यूज होता है, फॉर पर्पज ऑफ। द छूट गया है, वहां पे द नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी वर्ड यूज हुआ है फॉर पर्पज ऑफ। तो एक तो 3 वर्ड आपको दिख रहा है ना, फॉर पर्पज, पर्पज या पर्पजेज ऑफ है, फॉर पर्पजेज ऑफ है। पर्पज ऑफ या पर्पजेज ऑफ में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, फिर भी अगर वर्ड होगा तो एक बार देख लेना, उसमें वर्ड यूज होता है कि फॉर पर्पजेज ऑफ। एक मिनट देख लेता हूँ, प्रीवियस कन्विक्शंस, क्या वर्ड है, फॉर पर्पज ऑफ है कि फॉर पर्पजेज ऑफ है? सब पर्पसेस। सब पर्पसेस है। फॉर पर्पजेज ऑफ है, ठीक ना। लग रहा है कि मैं उस वाले में चेंज किया, इसमें चेंज नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, ऐसे पढ़ा लेते। तो उसमें कहता है फॉर पर्पजेज ऑफ, तो फॉर पर्पजेज ऑफ कृष्णा कहता है कि मिलार्ड्स, जब जब ये फ्रेज यूज होता है, एक फ्रेज है ये, कृष्णा कहता है कि जब फ्रेज यूज होता है तो वो बताता है कि ये काम रिपीटेड होना चाहिए, कई बार होना चाहिए, मतलब कई ग्राहक आने चाहिए, कई ग्राहक जाने चाहिए, एटलीस्ट एक से ज्यादा ग्राहक आने चाहिए, और एक से ग्राहक, मतलब एक से ज्यादा बारी घटनाएं घटित होनी चाहिए। तो कहता है कि मिलार्ड्स, सिंगल टाइम में किसी प्लेस का इस तरह के पर्पजेस के लिए यूज करना ब्रोथल के डिफिनेशन में नहीं आता है। इसका रीजन है कि वर्ड यूज हुआ है फॉर पर्पजेस ऑफ। अब सुप्रीम कोर्ट के पास दुविधा हो गई, सुप्रीम कोर्ट के पास इशू फ्रेम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का इशू फ्रेम करता है कि वेदर solitary use of any place for sexual purposes on hire should come under the definition of brothel or not। इशू फ्रेम होता है कि अगर कोई प्लेस सिर्फ एक बार यूज होता है सेक्सुअल पर्पसेस ऑन हायर के लिए, तो वह ब्रोथल के डिफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा। वर्ड यूज हुआ फॉर पर्पसेस ऑफ, सुप्रीम कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपके बाद में ये बात तो सही है कि हाँ, एक बार से अधिक घटना यहाँ पे होनी चाहिए, एक से अधिक इसके एक्सीडेंट के एविडेंस होने चाहिए। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि चलिए हम इस बात तो राजी हैं कि एक से अधिक बार किसी घटना का होना चाहिए, क्योंकि फॉर पर्पजेज ऑफ वर्ड यूज हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए, एसीपी को पहले इंफॉर्मेशन मिलती है, पहले इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस तरह की घटनाएं चल रही हैं, तो इसका मतलब कि पहले से घटनाएं चल रही थी। एसीपी ने जो दोबारा अपना सनमुगम को भेज करके प्लानिंग के थ्रू आपको अरेस्ट किया है, वो पहली बार की घटना नहीं है। वह घटना तीसरी, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार की हो सकती है, पहली बार की नहीं है, क्योंकि एसीपी ने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग रिकॉर्ड किया है अपने स्टेटमेंट में कि उसको इंफॉर्मेशन मिला कि कृष्णा नाम का एक क्रिमिनल है जो इस तरह का प्रोस्टिट्यूट चला रहा है, इस तरह का ब्रोथल चला रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने रिमार्क में डालता है ब्रोथल के डिफिनेशन को लेकर के,
सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इफ आफ्टर कंसिडरिंग द all fact and circumstances it clearly denotes that that place was being used for many purposes or for many times, that's why that place would come under the definition of brothel. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी लाइन को पढ़ाने के लिए आपके सिलेबस में कृष्णामूर्ति कृष्णन के जजमेंट को रखा गया है। इससे ज्यादा का कोई काम नहीं है इसमें। 3 पेज का ओरिजिनल जजमेंट है, 3 या 4 पेज का। बस यही है कि क्या सिंगल टाइम यूज होना किसी प्लेस का ब्रोथल होगा, तो आपको कहना होगा कि नहीं, सिंगल टाइम का कोई भी प्लेस यूज होता है वो ब्रोथल नहीं होगा। लेकिन अगर सरकमस्टांसेस इस तरह से बता रहे हैं, स्टोरी इस तरह की बन रही है, बाकी फैक्ट एंड सरकमस्टांसेस इस तरह के बता रहे हैं कि यह घटना पहले भी हो चुकी है या एक घटना कॉन्सिक्वेंस में है, सीक्वेंस में है, इन दैट सरकमस्टांसेस भले ही एक बार वो अरेस्ट हुआ हो, भले ही एक बार रंगे हाथों पकड़ा गया हो, फिर भी वह प्लेस ब्रोथल के डिफिनेशन में आएगा। ये इसका पॉइंट रहा। किसी को डाउट है तो पूछ ले, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इशू फ्रेम हुआ था बाद में, वेदर सोलिटरी, सोलिटरी मतलब एक बार, सिंगल बार, वेदर सोलिटरी इंस्टांस ऑफ यूज ऑफ ए हाउस इज सफिशिएंट टू डिक्लेयर हाउस एज ए ब्रोथल। सुप्रीम कोर्ट कहना पड़ेगा नो, इस तरह के एक बार के यूज होने में हम किसी प्लेस को ब्रोथल नहीं कर सकते। लेकिन इसमें जो घटना है, यह पूरी स्टोरी है, यह बता रही है, यह कंटिन्यूएशन है। ठीक है कि एक पकड़ा गया है, दैट इज द अदर पॉइंट। एक कह रहा है, ये लाइन देखो, कोर्ट ने कहा कि ठीक है इसका आंसर यस नो में देना होगा तो नो आएगा, लेकिन कुछ मिर्च मसाला मिलाकर बताना होगा, तब यह प्लेस अब कन्वर्ट हो जाएगा ब्रोथल में। सिंगल स्टांस कपल्ड विथ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस इज सफिशिएंट टू एस्टैब्लिश both that place was being used as a brothel and the person alleged was so keeping it। ये लाइन जोड़ोगे और बन जाएगा। अगर ब्रोथल के डिफिनेशन में मैंने पिछले क्लास में बेरेट का प्रोविजन बताया था, फिर भी अगर इस केस में क्या कहना चाहता है ब्रोथल के डिफिनेशन को लेकर के किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं, पूछ लो भाई, पूछ लो कोई दिक्कत नहीं है, पूछो। Sir, I have a doubt. बोलो। Sir, according to the definition of brothel, it is also said that for the purpose of sexual exploitation or for the abuse. हाँ, So, if Krishnamurti would have taken a stance that it's not for the sexual exploitation, would the court have been agreed upon it? अच्छा देखो, हमें अंग्रेजी बहुत समझ में नहीं आती है, लेकिन तुम्हारे क्वेश्चन को फ्रेम करना चाहता हूँ, तुम क्या कही हो। हमें लगता है कि ये कहना चाह रही है स्टूडेंट कि अगर कृष्णामूर्ति ए प्लीड ले लेता कि मिलार्ड्स जो अंबिका गई थी वह सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के पर्पज से नहीं गई थी, तो शायद कृष्णामूर्ति बच जाता। यही कहना चाह रही हो क्या? Yes, sir. लेकिन एक बात मैं बता दूं, इसमें क्या है, क्योंकि ये डिफेंस आपको लेना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए डिफेंस लेना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर पेड क्या है, पर्पज क्या है, पर्पज क्लियर बता रहा है। वो बातचीत हो रही है कि हम 30 रुपया किस लिए दे रहे हैं, बातचीत हो रही है, पर्पज हो रहा है, और उस पर्पज के अंतर्गत वो जो रूम में भेज रहा है कि हाँ तुम जा करके इसके साथ, अगर हमने किसी प्रोस्टिट्यूट को पैसा दिया कि हाँ इसके साथ मैं सेक्स करना चाहता हूँ और उसने पैसा ले लिया, और लेने के बाद कह रहा है कि बगल वाला रूम है, तुम अंदर जा करके तुम गेट के अंदर से बंद कर देना, इसके बाद तुम्हें जो करना हो कर देना। एक क्लियर डिनोट्स करता है कि वहां पे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के पर्पज से ही अंबिका भेजी गई थी। ऐसा नहीं था कि अंबिका के साथ कोई शादी का था प्लान था, या पहले से एक दूसरे को जानता था, या कोई लव स्टोरी थी कि मिलने का कोई जगह नहीं बन रहा था, बजरंग दल वाले खड़े बैठे थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। एकदम क्लियर कट पर्पज था, और उन दोनों का अंदर जाना, और जो कोर्ट का जो ये सब कहते हैं ना कि जब हम दोनों दरवाजा खोले तो वो आपस में दोनों कुछ अलग पोजीशन में मिले, मतलब वो कुछ डिस्टर्बिंग पोजीशन में मिले। ये क्लियर कट दिखा रहा है कि देयर वाज ए सिचुएशन ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। एंट्री अपने आप में
होना ही सफिशियंट है। अभी मैं शुरू में बता रहा था, एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स इज नॉट नेसेसरी। कोई कहे कि हाँ मैंने वैसे मैं पैसा दे दिया, ये सपोज दैट मैं, मेरा ही सरकमस्टांसेज है, मैं किसी को कहूँ कि हाँ मैं इस प्लेस पर गया था और मैं इसको पैसा दिया था इस काम के लिए, और फिर मैं अंदर जा करके बैठ करके बातचीत कर रहा था, मैंने तो अंदर कुछ किया ही नहीं, मैं तो बहुत इनोसेंट आदमी हूँ। अगर मैं अपने वाइफ से ये बात बताऊं, वो तुरंत मुझे डाइवोर्स दे देगी। वो इस बात को तैयार ही नहीं होगी कि हाँ तुम पैसा भी दिए थे, लड़की को ले जाकर घर के अंदर बैठे भी थे, और तुम बोल रहे हैं कि हम कुछ किए ही नहीं थे, का राखी बंधवाने गए थे वहां पे, तब 100% डाइवोर्स दे देगी। तो हमारे कहने का मतलब है प्रैक्टिकल सर्कमस्टांस है जिसमें कुछ इस तरह का डिफेंस नहीं ले सकता है। अगर वो रूम में नहीं भेजता, कहता कि ठीक है तुम रहने दो, अंबिका को यही रहेगी, जो बातचीत करना है हमारे सामने बात करो, या तुम तीनों को लेकर के जाओ, या कहीं भी जाओ तीनों के साथ बात करो, तब वहां पे सिचुएशन अलग होता। तीन में से दो को अलग छोड़ता है, एक को ले जाकर के रूम के अंदर रखता है और अंदर से दरवाजा बंद करता है। दिस इज सफिशियंट टू शो दैट देयर वाज ए सिचुएशन ऑफ द सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन आर एब्यूज। शायद मुझे लग रहा है कि मैं क्लियर कर दिया हूं, आपको डाउट नहीं होगा। Yes, sir. Sir, but exploitation would refer to more of a forceful and without consent सेक्शन ई wala. और एफ की हो ना। Yes, sir. E. हाँ तो जो क्लास पूछने से पहले बता दिया करो कि सर माई सेक्शन इज दिस, और इसके बाद स्टार्ट करो। ठीक Okay, है। sir. रही बात, इस बात को खींचना बहुत ज्यादा मुझे उचित नहीं लग रहा है, इतना तुम समझ रही हो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और अब्यूज का, बाकी थोड़ा सा पढ़ा लेने दो, ठीक ना। एक क्वेश्चन सफिशियंट था। Okay, sir. Okay, sir. Thank you. एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट था। बोलो। तो सर सेक्शन जैसे पहले आपने, बता दिया करो, क्योंकि बाकी बच्चे ई और एफ वाले हमारे गर्दन पर चढ़ जाएंगे हाँ कल जी को। सर, मैं सेक्शन एच की हूँ। हाँ, तो यही प्रॉब्लम है ना तुम्हारी। हाँ जी सर, चलो पूछूं? ठीक है पूछ लो, लेकिन थोड़ा सा आगे से ध्यान रखिए आप लोग। हाँ जी चलो सर। हाँ बोलो। सर जैसे आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज बोली थी कि एक अगर एक बारी का इंसिडेंट है तो क्राइम, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं है। तो नहीं सर क्राइम ऐसे, मत यूज किया करो, क्योंकि ब्रोथल हाँ, नहीं है। अच्छा है ना। ब्रोथल नहीं है, हाँ जी। ब्रोथल का तो डेफिनेशन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ना। यस सर। सर तो जैसे अगर एक बार का इंसिडेंट देखा जाए तो सर ऐसे तो जिसने सपोज अगर नया नया कोई है इस काम में और जो सोच रहा है कि अब उसने अपना यही प्लान कर रहा है वो कि यही काम करना है आगे, तो वो तो सर ऐसे फिर डिफेंस ले लेगा इसी चीज का पहली हाँ बार के इंसिडेंट पे। ले लेगा डिफेंस, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर सर, हाँ बोलो। सर फिर ऐसे तो बच जाएंगे ना जो फिर ऐसे जेन्युइन क्रिमिनल्स हैं या फिर जो ओरिजिनल क्रिमिनल्स हैं, वो तो फिर डिफेंस लेके बच जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में थोड़ा सा वो नहीं है, ग्लिच नहीं है? देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, नहीं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में ग्लिच नहीं है, था, हो रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी चालाकी से उसको बचाकर निकल गया। सुप्रीम कोर्ट बचाया कैसे उसको, ग्लिंच या ग्लिंच मैंने जो भी अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, लेकिन जो भी प्रॉब्लम आ रही थी सुप्रीम कोर्ट ने बच गया उससे। क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, इस स्टूडेंट का बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। वैसे अभी हमारे यहाँ से अभी रोहड़ी एरिया से ही 2017 घटना है। अभी जैसे कि हमें लग रहा था कि वो मकान उसने 2 महीना पहले किराए पर लेता है, और यूनिसेक्स सैलून को लेकर के कहता है कि हम यहाँ पे यूनिसेक्स सैलून चलाएंगे, और जो भी सर्कमस्टांसेस होता है 2 महीने के भीतर पुलिस का रेड पकड़ता है, और 10 लड़कियां और 2 मैनेजर वहां से अरेस्ट कर लिए जाते हैं। कल को 100% डिफेंस ले लेगा कि मिलाट 2 महीना तो हमें हुए ही थे, या हो सकता है मेरा पहला ही घटना था, मेरे पहले ही तो इस तरह हम सिर्फ गैदरिंग हो रही थी या इस तरह के सर्कमस्टांसेस था, तो आप इसको छोड़िए, हम लोगों को पहली बार घटना है, कहेगा, कहेगा 100% कहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ फॉर यू पर्पजेज ऑफ वर्ड यूज हुआ है, जो फ्रेज की तरह यूज होता है, जो कि डिनोट करता है कि हाँ ये कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, या एक है एक से। यस बेबी होल्ड करना, ठीक ना। तो इस तरह से कह रहा है कि ले लेगा डिफेंस फॉर द पर्पजेज ऑफ। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कहता है, इसका क्या उसका आंसर निकालता है। लड़के भी तो दुष्ट होते हैं, डिस्टरबेंस नहीं होता है तुम लोगों को, थोड़ा बहुत तो होगा, एक घर का मैटर है जान, ऑफलाइन तो है नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का इसका आंसर निकालता है, कहता है कि हम सिर्फ घटना के घटित होने से ही नहीं देखेंगे, अगर बाकी इंफॉर्मेशन उसको सपोर्ट कर रहा है,
बाकी इंफॉर्मेशन सपोर्ट कर रहा है तो हम ये निकाल लेंगे कि हाँ यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन ऑलरेडी चल रहा था। और कोई भी घटना होगी तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या कहेगा? 100% कहेगा कि हमें इंफॉर्मेशन मिला था कि हाँ इस तरह से चल रहा है, कहेगा ना। भाई अगर आप शादी समारोह रख रहे हैं, घर में 10 लड़कियों को बुला रहे हैं, तो पहले दिन थोड़ी पुलिस आकर रेड डाल देगी कि हाँ ये प्रोस्टिट्यूशन का मामला है। पुलिस को भी तो कहीं से इंफॉर्मेशन मिलता है या कुछ तो उसका भी क्लू होगा, अदर फैक्ट कलेक्ट करेगा, तभी तो रेड डाल कर कह देगा कि हाँ प्रोस्टिट्यूशन का मैटर चल रहा है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो लाइन है कि अदर फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करते हुए इस बात को कंक्लूड किया जाएगा कि वह मतलब कि पहली बार घटना थी या उस तरह का कंटिन्यूएशन था। तो जो अदर वर्ड जोड़ना है, जो इसमें ये वर्ड जो जोड़ा गया है, अ सिंगल स्टांस कपल्ड विद द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, कोई भी ऐसी घटना हो जब इस तरह का रेट पड़ता है या कुछ होगा तो कुछ ना कुछ उसके साथ सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस मिले ही रहेंगे, तभी जाकर के उस तरह का मैटर आएगा। लेकिन प्योर अगर उसी तरह का मैटर आ गया जिसे कोई सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस नहीं है, तो पहले मामले में पहली बार में इस तरह का वो डिफेंस ले सकता है, लाकर डिफेक्ट लेकर के आंसू निकल सकता है। हम इस बात से डिनाई नहीं करते हैं, तुम्हारा कुछ हद तक 10% तुम्हारा सही है, लेकिन जो 90% का जो मैटर है कपल्ड विद सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस कवर कर लेगा। समझ में आया कि नहीं क्या कहना चाह रहा था? यस सर क्लियर, थैंक यू। हाँ यही मैं सोच ही रहा था कि थैंक यू बोलो। चलो ठीक है, अब आगे पढ़ा देता हूँ इसको पॉइंट को। तो यहाँ देखो, इसलिए यहाँ पे आंसर है नो, लेकिन नो का आंसर है यहाँ पे यस में कब कन्वर्ट होगा? कन्वर्ट होगा कपल्ड विद सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस सफिशिएंट टू एस्टेब्लिश बोथ द प्लेस एंड लाइक। अब प्रूफ हो गया कि हाँ वो ब्रोथल था। जब ब्रोथल था तो मैनेजर भी था, क्योंकि मैनेजर के हैसियत से तो ले रहा था ना, वही तो बार्गेनिंग कर रहा था ना कि हाँ मैं 10 रुपया लूंगा, 20 रुपया लूंगा, 30 रुपया लूंगा, उसी हिसाब से कंप्रोमाइज कर रहा था। तो मैनेजर था, पैसा उसने बार्गेनिंग भी वही किया, पैसा उसने खुद रिसीव भी किया और खुद ही अंबिका को डायरेक्शन भी दिया कि हाँ मैं तुम्हारे लिए पैसा ले चुका हूं, तुम इसके साथ तुम इस रूम के पास, इस रूम में तुम जाओ। तो इसको वो इस तरह का सरकमस्टांस, ये प्रूफ हो गया कि हाँ भाई देयर वाज ए कन्विक्शन अंडर द सेक्शन 3। व्हाई? बिकॉज दैट प्लेस कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ब्रोथल। अब हमें उसके पनिशमेंट पे चर्चा करना होगा, कितना उसको पनिशमेंट दिया जाए। सेकेंड इशू है उसके पनिशमेंट को लेकर के, हाउ मच ही शुड बी पनिश्ड, कितना उसे पनिशमेंट मिलेगा। अगर एक बार कन्विक्शन हुआ है तो उसे 1 से 3 साल के भीतर का सजा मिलेगा। अगर दूसरी बार हुआ है तो उसे 2 से 5 साल के भीतर का कन्विक्शन होगा। वो कह रहा है कि मिलाट्स, मेरा कन्विक्शन जो सेक्शन 3 में आ, यहाँ पे जो शानमुगम के साथ जो मैटर हुआ है वो मेरा पहला कन्विक्शन है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रहा है कि नहीं 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 सर, यह हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसका पुराने एक्ट के अंतर्गत, मद्रास इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अंतर्गत भी इसका कन्विक्शन हो रखा है। अब कृष्णा कह रहा है कि मिलाट्स वह तो पुराना एक्ट था, वह तो रिपील्ड भी हो गया नए एक्ट के अंतर्गत। जब वो रिपील्ड हो गया तो उसका जो कन्विक्शन मेरा वहां पे हुआ था वो भी रिपील्ड हो गया। अब वो कन्विक्शन जो है वो कंटिन्यूएशन में है ही नहीं। इसी बात को लेकर के है कि जो पुराना कन्विक्शन है, जो मद्रास इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत जो कन्विक्शन है, वह कन्विक्शन सेक्शन 3 के पर्पज से सेकेंड कन्विक्शन माना जाए या वह कन्विक्शन सेक्शन 3 के पर्पज से काउंट ही नहीं होगी। मेन क्वेश्चन ये है कि वेदर द कन्विक्शंस अंडर द Madras, whether the conviction under the Madras Suppression of Immoral Traffic Act should be treated as a second or subsequent conviction for the purpose of Section 3 of the Immoral Traffic Act or not। अब उसका आर्गुमेंट है कि क्यों वह काउंट नहीं होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है क्यों काउंट होना चाहिए। अब इसी पर आर्गुमेंट होगा। Why conviction under the Madras Act should not be considered second convictions? ये कहता है कि मिलार्ड्स, इसका मैं आंसर देना चाहूंगा। कहता है मिलार्ड्स सेक्शन 25 क्लास 1 जब आता है तो कहता है कि जितने भी इस एक्ट से पहले के लॉ हैं सबको रिपील कर दिया गया।
तो यह एक्ट कब का है? 56 का है। और मद्रास का कब का है? 1930 का है। 1930 वाला जो है एक्ट रिपील हो गया। जो रिपील हो गया, मेरा जो कन्विक्शन 1930 के अंतर्गत था वह भी खत्म हो गया। बाय चांस मान लीजिए कि 1950 ईस्वी में कृष्णमूर्ति का कन्विक्शन इस एक्ट के अंतर्गत, जो 1930 वाला एक्ट है मद्रास सप्रेशन एक्ट का, उसमें कन्विक्शन हुआ है। और 1900 अब स्टेट की तरफ से कहा जा रहा है कि मिलार्ड्स 25 क्लास 2 कहता है कि भले ही वह एक्ट रिपील कर दिया गया हो, लेकिन उसका जो कन्विक्शन का पार्ट है वह कंटिन्यू माना जाएगा। जब वो कंटिन्यू माना जाएगा तो दैट्स वाई ड्यू टू द सेक्शन 25 क्लास 2 दैट कन्विक्शन अंडर द मद्रास एक्ट 1930 should be treated as a second conviction for the purpose of section 3. That's why this was the judgment of the Supreme Court. इस तरह से रिजेक्ट हो गया, ठीक ना। My point was that on the second issue, Krishnamurti was saying that the conviction under the Madras Suppression of Immoral Traffic Act should not be counted for the purpose of section 3. Why? Because section 25 clause 1 had already repealed that act. But Supreme Court rejected the argument on the basis of section 25 clause 2. Supreme Court said that although that old act has been repealed, but conviction under that act has been saved under 25 clause 2. So that's why your conviction should be counted for the second conviction, and he was punished under section 3 for committing the offense second times, and his appeal was rejected. अगर किसी को सेकेंड इशू को लेकर के कोई प्रॉब्लम है तो बताएं, अभी सॉल्व करता हूं। इफ यू एनी हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क। किसी को है प्रॉब्लम? नहीं है? फिर भी एक बार बता, नहीं है तो नहीं है, क्या बोले? कुछ तो बोलते हैं, 2 मिनट टाइम बचा हुआ, बोलो 5 मिनट खींचूं और बस। हाँ रुक जाओ बस 1 मिनट। ये है उसका कन्विक्शन है। कन्विक्शन उसका 2 जगह होता है। पहला कन्विक्शन होता है मद्रास इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अंतर्गत, दूसरा कन्विक्शन होता है उसका सीता एक्ट के अंतर्गत। उसका कहना है कि जो मद्रास, उसका ये आर्गुमेंट है, उसका कहना है कि जो मद्रास एक्ट के अंतर्गत जो कन्विक्शन हुआ है उसको आप काउंट मत करिए। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि नहीं, उसकी काउंटिंग होगी। क्यों काउंटिंग होगी? ड्यू टू द सेक्शन 25 क्लास 2। दैट्स व्हाई ही वाज कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 3 फॉर कमिटिंग द सेकेंड टाइम ऑफेंस। हाँ अब बताओ भाई, पूछो। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? बताना चाह रहे हो, पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे हो? ठीक है, तुम्हें लग रहा है ये पूछना चाहते हो लिसन में, तो बस इतना ये पूछना चाहते हो कि सर आप तो ये बोल रहे थे कि कुछ मामले में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है और कुछ मामले में इलीगल है, और आप कह रहे थे कि अगर कोई भी आदमी वॉलंटरली अपने आप से करे तो वह लीगल है। अगर तीनों लड़कियां कह दें कि हाँ अपने आप स्वेच्छा से हम लोग आई थी, स्वेच्छा से हम लोग ये सब काम कर रही थी, तब तो कृष्णमूर्ति बच जाएगा। यही कहना चाह रहे हो ना? लेकिन अब देखो इसका प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है मैं कहता हूं कि यह प्रोस्टिट्यूशन तभी लीगल होगा। खैर मैं आर्टिकल लिख रहा हूं, उसमें बताया हूं कि मुश्किल है कब कहना कि लाइवलीहुड के लिए है और कब कहना कि कमर्शियल पर्पज के लिए है। यहाँ पे कृष्णमूर्ति का इन्वॉल्वमेंट होना ही यह बता रहा है कि यह जो प्रोस्टिट्यूशन चल रहा था वह कमर्शियल पर्पज से चल रहा था। अगर सावित्री, शायद सावित्री नाम है या अंबिका, अगर अंबिका रोड पे खड़ा होकर के अगर इसको ढूंढती, इसको बुलाती, अपने फ्लैट पर लेकर के जाती, या अपने फ्लैट पर रहते हुए संपर्क करती, इंडिविजुअल संपर्क करती, तब वहां पे प्रोस्टिट्यूशन लीगल हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यह कमर्शियल ट्रांजैक्शन का है, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है। यहाँ लड़कियों, तीनों लड़कियों का कोई रोल नहीं है।
सिर्फ उनका यही रोल है कि दे आर रेडी टू सबमिट देयर बॉडी, बट हाउ मच मनी शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, how much money should be distributed between the manager and three girls, all these things depends upon the commercial transactions like this. That's why even they are ready to say that they had come voluntarily, they can't save to the Krishnamurti. ये प्रॉब्लम है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, प्रॉब्लम ये है कृष्णा मूर्ति का इन्वॉल्वमेंट होना ये बता रहा है कि ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन हो रहा है या ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहा है, ये है इसका पार्ट। और सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 ये नहीं कहता है कि हाँ जो लड़की है सिंगल है उसको हम पनिश करते हैं, ये उसको पनिश करता है जो कि मैनेजर है। भाई मैनेजर है तो प्रोस्टिट्यूट तो मैनेजर नहीं है, उसका तो काम सबमिशन ऑफ हर बॉडी है। मैनेजर है, ओनर है, लीज पर लिया हुआ है, लीज पर दिया हुआ है, इस तरह के आदमी को कवर करता है, ठीक ना? ये चीज है। एनीवन? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर एंड थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स फॉर टेकिंग द क्लास एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक ना? अगर किसी को डाउट है तो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, पूछ सकता है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।